جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتین و حضرات، ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے اور اس کا اختتام انشاءاللہ ہماری تمناؤں کے ساتھ، ہماری آرزوؤں کے ساتھ اور ہماری خواہشوں کے ساتھ انشاءاللہ امام کعبہ شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ ان کی دعا پر ہماری یہ نشست آج کی ختم ہوگی۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ آپ سب حضرات صبر و سکون کے ساتھ دعا کے بعد یہاں سے تشریف لے کر جائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جتنے مقررین سے اسلام اور امن کے بارے میں جو کچھ سنا اور جو پیغام آپ کو ملا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی، آپ اس پیغام کو عام کیجئے۔ ہم میں سے ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ وہ سچائی کے اس پیغام کو، امن کے اس پیغام کو، شانتی کے اس پیغام کو اور اطمینان کے اس میسج کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے۔ یہی ہمارا اور آپ کا مشن ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہم کو اور آپ کو سب سے بہترین امت کا ٹائٹل دیا ہے کہ تم سب سے بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ حق کا پرچار کرو، حق کی تبلیغ کرو، حق کو عام کرو اور حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور جو بات غلط ہے ان کو ختم کرو، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی، ہر مسلمان مرد کی، ہر مسلمان عورت کی، ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کے اس پیغام کو، امن کے اس میسج کو دنیا والوں تک پہنچائے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے غیر مسلم پڑوسیوں میں، اور حتیٰ کہ زمین کے اوپر تمام جگہوں پر ہم کو پھیل کر امن کا یہ پیغام عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، اسلام کے متعلق غیر مسلمانوں کے شبہات۔ میں نے میرے تقریر کے شروع میں قرآن مجید کے چند آیتوں کی تلاوت کی، سورہ عمران سے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں سے کہ تم سارے انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان سارے انسانوں میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو
अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पे ईमान रखते हैं। वतुमिनुना बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं और बुराई से रोके और अल्लाह पे ईमान रखें। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस्लाम की बातें उन लोगों को बतलाए जो इसके बारे में इल्म नहीं रखते। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैर मुसलमानों के शुबहात को दूर करे, गैर मुसलमानों के गलत फहमियों को दूर करे। जब मुसलमान गैर मुस्लिमों से इस्लाम के बारे में प्रचार करते हैं या इस्लाम की दावत देते हैं, अक्सर वो इस्लाम की अच्छाइयां बयान करते हैं। अक्सर मुसलमान 20, 50, 100 अच्छाइयां इस्लाम के बारे में बयान करते हैं। अगर हम मान भी ले कि वो गैर मुस्लिम इन 50 या 100 अच्छाइयों को कबूल करता है, फिर भी उसके दिमाग के पीछे कुछ बातें खटकती है। वो मुसलमान कहता है, हो सकता है कि ये 50 या 100 चीजें इस्लाम में अच्छा है, ये अच्छाइयां इस्लाम में हैं, लेकिन तुम वही मुसलमान हैं जो टेररिस्ट है। तुम वही मुसलमान है जो फंडामेंटलिस्ट है। तुम ही वो मुसलमान है जो अपने मजहब को तलवार के जोर पर फैलाया। तुम ही वो मुस्लिम है जो एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं। तुम ही वो मुसलमान है जो खवातीन को हिजाब में रखने के बाद जलील करते हैं। ये चंद शुबहात, ये चंद गलतफहमियां गैर मुस्लिम को इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं और इस्लाम की दावत पेश करता हूं, सबसे पहले मैं उनसे सवाल यह पूछता हूं कि आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। आपका जो भी इल्म इस्लाम के बारे में, सही या गलत, जो कुछ इल्म आपको इस्लाम के बारे में है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको इस्लाम के बारे में क्या गलत लगता है, आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। अच्छी बातों को दूर रखो, आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। और जब मैं उसे मुतमईन करता हूं और मैं कहता हूं कि आप इस्लाम के खिलाफ जो कहना चाहते कह सकते, चाहे इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, आप मुझे ये कहिए आपको इस्लाम से क्या शिकायत है। और जब मैं उन्हें मुतमईन करता हूं कि वो आराम से जो कुछ कहना चाहते हैं इस्लाम के खिलाफ कह सकते, फिर वो गैर मुस्लिम 3 या 4 सवालात करता है इस्लाम के बारे में। मेरा जो तजुर्बा है पिछले 20 सालों में दावती मैदान में, मुझे यह अंदाज हुआ कि गैर मुसलमानों की तकरीबन 20 शुबहात है, 20 गलतफहमियां हैं, 20 बहुत आम सवालात है। और जब भी कोई गैर मुस्लिम 3 या 4 सवाल करता है इस्लाम के मुतालिक या इस्लाम के खिलाफ, अक्सर ये 20 गलतफहमियों के दरमियान होता है, ये 20 शुबहात में से होता है। अगर हर मुस्लिम ये 20 गलतफहमियों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में, दिगर मजहबी किताबों की रोशनी में, साइंस और टेक्नोलॉजी की रोशनी में, विद रीजन, लॉजिक और साइंस के साथ अगर इसके जवाब को याद करता है और
गैर मुसलमानों को बताता है, चाहे आप वो गैर मुस्लिम को मुस्लिम न बना सके, लेकिन कम से कम उसके दिल में जो करवाहट है, जो शिकायत है इस्लाम के खिलाफ, जो जहर है इस्लाम के खिलाफ, कम से कम उसको तो आप निकाल सकेंगे। क्योंकि एक फिलॉसफी है, when the cup is empty, you first empty the cup. अगर कप फुल है, भरा हुआ है, अब पानी डालेंगे, पानी बह जाएगा। अगर एक गैर मुस्लिम का जहन इस्लाम के खिलाफ जहर से भरा हुआ है, आप कुछ भी अच्छाई कहेंगे, उस पर असर नहीं होगा। पहले उस जहर को बाहर निकालो। 100 के बदले 10 अच्छी चीज कहेंगे इस्लाम के बारे में, वो कबूल करेगा इंशाअल्लाह। पहले उस जहर को बाहर निकालो, उस गलतफहमियों को बाहर निकालो, उस शुबहात को बाहर निकालो। ये 20 सबसे आम सवालात, 20 शुबहात, 20 गलतफहमियां कैसे गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। जिस तरीके से मीडिया इंसान के जहन में इंफॉर्मेशन डालता है, उस तरीके से वो सोचने लगता है। आज का इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो, टेलीविजन चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेट हो, ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ इंसानों में जहर फैला रहा है। सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ शुबहात पैदा कर रहा है। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के बारे में शुबहात फैला रही है, उस तरीके से ये 20 सवालात, 20 शुबहात बदलते रहते हैं। आज जो आम 20 सवालात है गैर मुसलमानों के जहन में, 20 साल पहले वो कुछ और थे, 20 साल बाद हो सकता है कुछ बदल जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रहा है, उस तरीके से आज ये 20 आम सवालात गैर मुस्लिम के जहन में पैदा होते हैं। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुनिया के कई ममालिक का सफर कर चुका हूं। यूएसए, कनाडा, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिधर भी आप जाओ, ये 20 शुबहात, ये 20 गलतफहमियां वही है। हो सकता है कि माशरे के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से एक और गलतफहमी उसके जहन में आ सकती है। मिसाल के तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में गैर मुस्लिम सोचने लगता है कि ये इस्लाम में सूद हराम क्यों है, लेकिन वो बाकी के 20 गलतफहमियां वही हैं। चाहे इंडिया के गैर मुस्लिम से पूछिए, चाहे यूएसए के, यूके के, कनाडा के, सिंगापुर के, मलेशिया के, ये गलतफहमियां वही है। अगर हर मुसलमान इन गलतफहमियों का जवाब सही तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में, दीगर मज़ाहिब की किताब की रोशनी में, हिकमत के साथ, रीजन, साइंस एंड लॉजिक के साथ इसे याद कर ले और गैर मुसलमानों तक पहुंचाए, इंशाअल्लाह इस्लाम का नजरिया गैर मुसलमानों में बदल जाएगा। कम से कम उनके जहन, उनके दिल में जो जहर है, कम से कम उसे तो हमें निकालना फर्ज है हमारा। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं पहले 10 शुबहात का जवाब दूंगा। पिछले कॉन्फ्रेंस में, गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में मैंने आखिरी 10 सवालात का जवाब दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में मैं पहले 10 सवालात का जवाब दूंगा, लेकिन सारे 20 शुबहात का जवाब, गलतफहमी का जवाब इंटरनेट पे है। मैंने किताब लिखी है
most common questions asked by non-Muslims, or reply to most common questions asked by non-Muslims. non-Muslim के, गैर मुसलमानों के आम सवालात का जवाब और इंटरनेट पे मौजूद है और कई जबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में, अरबी में, कई जबानों में. आज सबसे ज्यादा इस्लामिक लफ्ज जो बदनाम है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है, वो है लफ्ज जिहाद. जिहाद के बारे में गलतफहमी सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भी है, क्योंकि मीडिया इतना जहर फैला चुका है लफ्ज जिहाद के खिलाफ कि सिर्फ गैर मुसलमानों के दरमियान ही नहीं, मुसलमान भी इसकी सही मानी नहीं जानते. अक्सर गैर मुस्लिम और मुस्लिम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो दौलत के लिए हो, चाहे वो फेम के लिए हो, चाहे वो अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, ये लोग समझते कि ये जिहाद है. जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग में हिस्सा ले रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे दौलत के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे फेम के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो. जिहाद ये अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से. इसकी बुनियाद है जहादा, मतलब जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल. तो जिहाद की मतलब है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल. और इस्लाम के पस मंजर में जिहाद उसे कहते हैं जो इंसान अपने बुरे गलत ख्यालात के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है. A person who strives against one's own evil inclination, अपने बुरे ख्वाहिशों के खिलाफ जो जिद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद. इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है. जिहाद उसे भी कहते हैं अगर एक इंसान नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, जो जंग में अपने आप को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद. जिहाद की मानी है जिद्दोजहद. अगर एक तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद. अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही जिहाद कर सकते हैं. ये बड़ी गलतफहमी है. कुरान में एक से ज्यादा आयतें हैं जिसमें लिखा है कि गैर मुसलमानों भी जिहाद करते हैं, गैर मुस्लिम भी जिहाद करते हैं. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने कहा है इंसानों से कि अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करो और तुम्हारी मां ने तुम्हें पेट में रखा और 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें तकलीफ के साथ जन्म दिया. उसके बाद फौरन अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने को, अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने के लिए जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनका कहना मत मानो. फिर भी
ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں شرک کرنے کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں, اس وقت آپ ان کا کہنا مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ سارے انسانوں سے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو, لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو ان کی بات مت مانو. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر مسلمان جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن یہ جدوجہد کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل شیطان, جدوجہد شیطان کے راہ میں. ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ, جہاد اللہ کے راہ میں. تو جب بھی یہ لفظ جہاد آتا ہے عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, جہاد اللہ کے راہ میں ہے. اگر کہا گیا ہے شیطان کے بارے میں, شرک کے بارے میں, تو پتہ لگتا ہے جہاد فی سبیل شیطان ہے. لیکن اگر نہیں کہا گیا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اکثر یہ لفظ جہاد کا ترجمہ اورینٹلسٹ, مغربی میڈیا کرتی ہے ہولی وار, اردو میں کہوں گا میں پاک جنگ. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے. جب کرسچین کروسیڈرز سینکڑوں سال پہلے اپنا مذہب زور کے بل پہ پھیلا رہے تھے, لوگوں کا قتل کر رہے تھے اگر وہ عیسائی دھرم نہیں قبول کرتے تھے, اس وقت یہ کہا جاتا تھا ہولی وار. اردو میں ترجمہ ہے پاک جنگ. آپ اگر قرآن مجید دیکھیں گے ہولی وار کا ترجمہ ہے پاک جنگ, عربی میں ترجمہ ہوتا ہے حرب مقدسہ. قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں آپ کو یہ عربی لفظ حرب مقدسہ کہیں بھی نہیں ملے گا. جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے, حرب مقدسہ نہیں ہے, پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جدوجہد. یہ ہولی وار استعمال کیا گیا تھا سب سے پہلی بار عیسائیوں کے لیے, کروسیڈرز کے لیے, جو زور کے بل پہ اپنا مذہب پھیلا رہے تھے. افسوس کی بات ہے کہ آج یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے. دوسری سب سے بڑی غلط فہمی غیر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے, انتہا پسند ہے. فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے, بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ فنڈامنٹلسٹ اسے کہتے ہیں, بنیاد پرست اسے کہتے ہیں وہ انسان کو جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور ان باتوں پہ عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اگر ایک انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور ان پہ عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. ہم
سارے بنیاد پرستوں کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے. ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے اور پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے کہ ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، یہ معاشرے کے لیے اچھا ہے، یہ اچھا بنیاد پرست ہے. دوسری اور اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، یہ معاشرے کے لیے برا ہے، یہ اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ انسان بنیاد پرست ہے اور پھر ہمیں لقب دینا پڑے گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے. جہاں تک کہ مسلم فنڈامنٹلسٹ کا سوال ہے، مسلم بنیاد پرست کا سوال ہے، میں اپنے آپ کو مسلم بنیاد پرست سمجھتا ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں مسلم بنیاد پرست ہوں. I am a fundamentalist, I am a Muslim fundamentalist and I am proud to be a Muslim fundamentalist. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں سارے انسانوں کو کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی تعلیم آپ مجھے دکھاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس تعلیم کے بارے میں بیک گراؤنڈ نہیں پتا، اس کا ریزننگ نہیں پتا، اسی لیے آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے، لیکن جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو ایک بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ تعلیم انسانیت کے خلاف ہے. یہ لفظ فنڈامنٹلزم ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا امریکن کرسچنز کے لیے 20ویں صدی کے پہلے، 20ویں صدی کے شروعات میں امریکن پروٹسٹنٹس ایک عیسائی کا گروہ ہے جسے کہا جاتا ہے پروٹسٹنٹس. ان نے پروٹسٹ کیا چرچ کے خلاف. کرسچین چرچ، عیسائی چرچ کہتا ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے. یہ امریکن پروٹسٹنٹ نے پروٹسٹ کیا، امریکن پروٹسٹنٹ نے التجا کی کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے، یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے، یہ تحریک اچھی تحریک ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ تحریک اچھی تحریک نہیں ہے. آپ جب آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن who strictly adheres to the ancient teachings and scriptures of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری میں کہا گیا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی قدیم پرانی مذہبی کتابوں کو پختگی سے عمل میں لاتا ہے. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پرانی کتاب پختگی سے عمل کرتا ہے کوئی بھی مذہب کی. ریوائزڈ ایڈیشن جب پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کی، اس میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ قدیم پرانی کتابوں پہ عمل کرتا ہے کوئی بھی مذہب کی، خصوصاً اسلام. Fundamentally the person who strictly adheres to the ancient doctrines and scriptures of a religion, especially Islam. اگر کوئی اسلام کی مذہب کی کتابوں کو
पुख्तगी से अमल में लाता है अपनी जिंदगी में, उसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। जब भी आप ये लफ्ज फंडामेंटलिस्ट सुनेंगे, फौरन आपका ज़हन कहेगा कि ये मुस्लिम है। आज हम मुसलमान हमेशा डिफेंस पे जाते हैं, वी आर अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक को क्या कहेंगे? उर्दू में कहूंगा कि मुसलमान अफसोस की बात है नपुंसक बन गए। अगर कोई हमें कहता है फंडामेंटलिस्ट, नहीं नहीं नहीं, मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं। आज मीडिया कहती है हम एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। हम कहते नहीं नहीं, मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। मैं कहता हूं आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं इंतहा पसंद हूं। I am an extremist. I'm extremely kind. I'm extremely merciful. I'm extremely loving. I'm extremely just. I'm extremely honest. मैं इंतहा पसंद हूं। मैं इंतहा से मोहब्बत करता हूं। मैं इंतहा से प्यार करता हूं। मैं इंतहा के साथ रहमत करता हूं। मैं इंतहा के साथ अदल करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इंतहा के साथ अदल करने से क्या बुराई है? आप चाहते हैं कि आप अदल, जब आपका फायदा है तो अदल करें, फायदा नहीं तो अदल न करें। हर मुसलमान को जहां तक के रहमत का सवाल है, जहां तक के अदल का सवाल है, जहां तक के ईमानदारी का सवाल है, इंतहा पसंद होना ही चाहिए, नहीं तो मुसलमान ही नहीं है। वी गो ऑन द डिफेंस, हम पीछे हटते हैं और हम अपने आप को कहते नहीं नहीं, मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं, मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। क्या हो गया मुसलमानों को? हम अपने आप को मुसलमान कहने को शर्माते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हमारा फर्ज है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, वरना हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं, मुसलमान कहने के लायक नहीं। तीसरी गलतफहमी, तीसरा शुबहात, अक्सर मीडिया कहती है कि मुसलमान टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। और कई बार आप देखेंगे कि एक इंसान को वो कुछ काम कर रहा है और उसी काम के लिए उसे मिलता है दो अलकाब, टू लेबल्स। और एक अच्छी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। 60 साल पहले, 70 साल पहले, जब हमारा हिंदुस्तान, जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी, अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे, तब कई हिंदुस्तानी अपने देश के आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। इन लोगों को अंग्रेज कहते थे दहशतगर्द, टेररिस्ट। वही लोगों को हम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो देशभक्त है, पेट्रियट है। वही इंसान, वही काम, दो अलकाब। अगर आप अंग्रेज के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज को हक है हिंदुस्तान पे हुक्म करने का, तो आप उनको बेशक कहिए कि वो दहशतगर्द है। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हम पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो हम इन लोगों को बेशक पेट्रियट कहेंगे, देशभक्त कहेंगे। वही इंसान, वही काम, दो अलकाब। अक्सर जब मैं मीडिया के सामने क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब का सेशन होता है मेरा, तो मीडिया अक्सर मुझसे पूछती है कि मुसलमान दहशतगर्द क्यों हैं? तो मैं उनसे पूछता हूं कि मीडिया 60 साल पहले, अंग्रेज की मीडिया 60 साल पहले कहती थी कि भगत सिंह दहशतगर्द है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप इस बात को मानते? नहीं, बेशक गलत है। तो मैं कहता हूं, मैं भी इस बात को नहीं मानता हूं कि भगत सिंह
दहशत गर्द था। लेकिन वही अंग्रेजी मीडिया आज जब कह रही है मुसलमान दहशत गर्द है, आप क्यों उस बात को मानते? हंसने लगते हैं। हमने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी है। हिंदुस्तान की तारीख से हम जानते हैं कि भगत सिंह एक दहशतगर्द नहीं था, वो अपने देश की आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। तो क्योंकि हम हिंदुस्तान की तारीख जानते हैं, कम से कम 99% हिंदुस्तानी ये मानते हैं कि देशभक्त भगत सिंह देशभक्त था, दहशतगर्द नहीं था। तो आज जब वही मीडिया मुसलमानों को इल्जाम लगा रही है, मुसलमानों पे, कि वो दहशतगर्द है, आप कैसे उसको मानते? क्या आपने तहकीक की? हंसने लगते। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी आप पे कोई भी आपके पास पैगाम लेके आता है, उसकी तहकीक करो दूसरों तक पहुंचाने के पहले। इसी लक़ब देने के पहले ये तहकीक करो कि किस वजह के लिए वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है। और ये आम है, 2 लक़ब देना आम है, और मैं आपको सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं इसके बारे में। आप जब पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में 19वीं सदी में 1895 1875 में कई अमेरिकन अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त अंग्रेज अमेरिका पे हुकूम कर रहे थे, अंग्रेज अमेरिका पर हुकूमत कर रहे थे। और उस वक्त अंग्रेज कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज वॉशिंगटन। 1875 के बाद जब अमेरिका को आजादी मिलती है, सबसे पहला अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है जॉर्ज वॉशिंगटन। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। ऐसे कई मिसाल है। साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले गोरे साउथ अफ्रीका पे हुकूमत करते थे। इट वॉज द अपार्थाइड सिस्टम, भेदभाव था रंग का। गोरे समझते थे कि हम सुपीरियर है, हम आला है। जब गोरे हुकूमत करते थे उस वक्त उन लोगों ने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था और रॉबिन आइलैंड में 25 साल से ज्यादा कैद में रखा। और उस वक्त सफेद हुकूमत, गोरे की हुकूमत कहती थी कि नेल्सन मंडेला इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, सबसे बड़ा टेररिस्ट है। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है, नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और वो बन जाता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते हैं, सबसे बड़ा दहशतगर्द बन जाता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। और चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि नेल्सन मंडेला खराब इंसान था और अच्छा बन गया, वही काम के लिए जिसे उसे दहशतगर्द कहा गया था, उसी काम के लिए उसे चंद साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें यह पता लगता है ये सारी तारीख पढ़ने के बाद कि जिसके पास पावर है वो जो भी लक़ब देता है इंसान को चिपक जाता है। सही है या गलत है उसे कोई लेना देना नहीं। अगर जो पावर में है आज, जिसके पास मीडिया का कंट्रोल है, वो जो लक़ब देता है इंसान के लिए, वो लक़ब चिपक जाता है, चाहे वो सच हो या गलत हो। इस्लाम में हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब देने के पहले, क्या वो सही या गलत है। चाहे ताकतवर इंसान लक़ब दे या कमजोर इंसान लक़ब दे, हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब सही है या गलत है।
चौथी सबसे आम गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम तलवार के जोहर पे फैला, इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। और इसका जवाब यह है कि इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, सलामती। तो अगर मैं तर्जुमा करूंगा इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, उसकी मानी होती है सलामती तलवार के जोर पे फैली। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। और इस गलतफहमी का जवाब सबसे बेहतरीन तरीके से देते हैं ओलेसी ओलेरी। ये एक मशहूर मुहर्रिक है, हिस्टोरियन है, डिलेसी ओलेरी। डिलेसी ओलेरी लिखते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic myth that historians have ever repeated. दिल्ली से ओलेरी कहते हैं किताब में इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, कि तारीख के जरिए हमें साफ मालूम पड़ता है कि वो लेजेंड, वो कहानी कि मुसलमान जो भी देश के ऊपर हमला करके जीतते हैं, तलवार के जोर पे अपना मजहब फैलाया, वो सबसे भयानक और बेबुनियाद कहानी है जो मुहर्रिक ने हमेशा दोहराई है। तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने अरब ममालिक पर 1400 साल तक हुकूमत की। चंद साल के लिए अंग्रेज आए, चंद साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन तारीख गवाह है कि अरब ममालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल तक हुकूमत की। लेकिन आज भी 140 लाख क्रिश्चियन है जो अरब है। आज 1,40,00,000 अरब है जो ईसाई है, जो सदियों से ईसाई है, नस्लों से। कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 14 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 1,40,00,000 अरब है जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई है सदियों से, नस्लों से। अगर हम मुसलमान चाहते तलवार के जोर पे हर एक अरब को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, अंदलस पर। हमने हमारा काम नहीं किया, हमने इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाया। क्रूसेडर्स आए, ईसाई आए, मुसलमान को साफ किया। एक मुसलमान भी खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, मुगल्स ने। अगर हम मुसलमान चाहते हर एक हिंदुस्तानी को तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज्यादा गैर मुसलमान हिंदुस्तान में शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। हम चाहते तो हर एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया, और इस्लाम हमें इसकी इजाजत भी नहीं देता। आज वो देश इंडोनेशिया, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं,
मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी इस्लामिक आर्मी, कौन सी मुसलमान की फौज इंडोनेशिया गई जहां आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं? मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुसलमान फौज मलेशिया में गई थी? कौन सी मुसलमान फौज वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी? कौन सी फौज? कौन सी तलवार? थॉमस कार्लाइल, एक फेमस मुहर्रिक, हिस्टोरियन और राइटर, वो लिखते हैं अपनी किताब हीरोज एंड हीरो वर्शिप में, हीरो और हीरो वर्शिप, हीरो और हीरो परस्ती में। और वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन थॉमस कार्लाइल लिखते अपनी किताब में कि मेरा सबसे बड़ा हीरो प्रॉफिट, हीरो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो लिखते हैं, कौन सी तलवार? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। हर सोच, हर आइडिया सबसे पहले बार एक इंसान के जहन में जन्म लेती है। एक इंसान सारे इंसानों में, एक शख्स सारी दुनिया में। वो शख्स को क्या सफलता मिल सकती अगर वो तलवार के जोर पे अपनी आइडिया फैलाएगा? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। थॉमस कार्लाइल कह रहे, कौन सी तलवार? हक की, रहमत की। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति अहसन। तो लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। आपको ढूंढने पड़ेगा हिकमत की तलवार, प्यार की तलवार। अगर हमारे पास लोहे की तलवार होती थी, स्टील सॉर्ड, फिर भी हम किसी को जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मजहब में किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। एक सर्वे हुआ था जो लिखा गया है रीडर डाइजेस्ट अलमाइनिक ईयर बुक में 1984 में, सन 1984 में। और ये सर्वे कहता था कि 50 साल के दरमियान, सन 1934 से लेके सन 1984 तक के इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब कौन सा फैला, कौन से मजहब में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और ये सर्वे जो क्रिश्चियन ने किया था, उस सर्वे का रिजल्ट था कि सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब इन 50 सालों में था इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 50 सालों में, सन 1934 से लेकर सन 1984 तक, इन 50 सालों में कौन सी मुस्लिम फौज ने गैर मुस्लिम पर हमला किया और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर जबरदस्ती की? मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मुसलमान ने तलवार इस्तेमाल की गैर मुसलमानों को इस्लाम बनाने के लिए, मुस्लिम बनाने के लिए? और ईसाईयत सिर्फ 47%, सिर्फ 47। इस्लाम 235% बढ़ा, ईसाईयत सिर्फ 47%, 47%। आज की मीडिया अक्सर कहती है कि इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता। आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम, यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। और ये मीडिया जो कहती है कि इस्लाम खवातीन के खिलाफ है, खवातीन को हुकूक नहीं देता है, आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसमें से 2/3 हिस्सा, 2/3 ये खवातीन हैं। अमेरिका में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अमेरिकन लोग, 2/3 लोग गैर मुसलमान खवातीन हैं। यूरोप में 2/3 हिस्सा जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खवातीन हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता तो ये अमेरिकन, यूरोपियन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रही है?
کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے حقوق صرف ایک ہی مذہب میں ہے، اسلام۔ اور یہ جو اسلام کے خلاف زہر پھیلنے کا جو میڈیا کا 9/11 کے بعد، سپٹمبر 11 کے بعد، 2001 کے بعد اور بڑھ گیا، اور جتنا وہ زہر پھیلا رہی ہے، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد، 2001 کے بعد جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہی ہے، اسی لیے جہاد نمبر 1 پہ آ گیا اور باقی سوالات نیچے چلے گئے۔ لیکن جتنا یہ زہر پھیلا رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ میں 9 مہینے میں ہی 35,000 امریکن غیر مسلم اسلام قبول کیے۔ یورپ میں 10 مہینے میں 9 سپٹمبر 2001 کے بعد 20,000 یورپین نے اسلام قبول کیے۔ جتنا زہر پھیلا رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ لوگ پلان کر رہے ہیں، پلاٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پلان کرتا ہے، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے۔ آپ پلان کرو، اللہ بھی پلان کرے گا، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے۔ آپ جتنا اسلام کے خلاف زہر پھیلائیں گے اتنا ہی لوگ اسے قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ زہر کو امرت بناتا ہے۔ اور اس غلط فہمی کے جواب کو میں ختم کروں گا ایک کہاوت کے ساتھ۔ ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں وہ لوگ جو گھبراتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیر بم عربوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گا، وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بم، سلامتی کا بم، امن کا بم گر چکا ہے۔ وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ سامنے دیکھو نا۔ اسلام کے متعلق 5واں سب سے عام سوال ہے، اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ 9/11 کے پہلے، 2001 کے پہلے یہ ٹاپ آف دا چارٹس تھا، نمبر 1 پہ تھا۔ میری پرانی کتاب آپ دیکھیں گے، نمبر 1 پہ تھا، وائی از پالیگمی الاؤڈ ان اسلام؟ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ نمبر 1 تھا، 9/11 کے بعد یہ نمبر 5 پہ آ گیا۔ ٹاپ آف دا چارٹس میں اوپر نیچے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہی اس طریقے سے یہ ٹاپ آف دا چارٹ بدلتے رہتا ہے۔ میں جواب دینے کے پہلے یہ صاف ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کرو۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھ سکتے، چاہے رامائن، ویدا، بائبل، یہودی کی کتاب، عیسائی کی کتاب، ہندو کی کتاب، کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے قرآن کے علاوہ۔ آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد
राजा दशरथ की एक से ज्यादा बीवी थी। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में श्री कृष्ण की कितनी बीवी थी? 4, 10, 100, 1000, 16,108। जब श्री कृष्णा की 16,108 बीवियां हो सकती है, तो हम मुसलमान की ज्यादा से ज्यादा 4 क्यों नहीं हो सकती? तो हिंदू मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे आप रख सकते हैं, कोई भी ममानियत नहीं है। आप जब यहूदी की किताब पढ़ेंगे, ईसाई की किताब पढ़ेंगे, तोरा पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। यहूदी मजहब में आप जितनी बीवियां चाहे रख सकते हैं। वो बेनशेम गेन यहूदा, रबाय गर्शम बिन यहूदा 11वीं सदी में एक साइनॉड पास किया, एक हुक्म जारी किया कि यहूदी सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। लेकिन सन 1950 तक के जो यहूदी मुसलमानों के देशों में रहते थे, उसे कहते थे सेफराडिक कम्युनिटी, यहूदी एक से ज्यादा बीवी रखते थे। जब रबाय, चीफ रबाय ऑफ इजराइल, उन्होंने जब हुक्म जारी किया कि अभी यहूदी सिर्फ एक बीवी रख सकते, उसके बाद यहूदी अभी आज एक बीवियां रखते हैं, एक बीवी से ज्यादा नहीं रखते। लेकिन यहूदी मजहबी किताब के मुताबिक आप जितने चाहे उतनी बीवियां रख सकते हैं। ईसाई मजहबी किताब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक आप जितनी बीवियां चाहे उतनी रख सकते हैं। वो चर्च एक रुकावट पैदा करता है और कहता है कि क्रिश्चियन मर्द सिर्फ एक बीवी रखना चाहिए। हिंदू मजहब के हिसाब से जितने चाहे उतने रखिए। ये एक हुक्म पास किया गया था इंडियन पेनल कोड में सन 1954 में अंडर स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें कहा गया है कि हिंदू सिर्फ एक बीवी रख सकता है। कौन कहता है? हिंदुस्तानी इंडियन पेनल कोड, हिंदू मजहबी किताब नहीं। जब आप पढ़ते एक रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम सन 1975, सन 1995 में, पेज नंबर 65 और 66, वहां लिखा है कि हिंदुस्तान में 10 साल के दरमियान सन 1951 से लेकर सन 1961 तक के, इन 10 साल के दरमियान जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, इनमें से 4.31% 4.31% of the Muslims in India, 4.31 यानी तकरीबन 4.25% मुसलमान हिंदुस्तान में एक से ज्यादा बीवी रखे थे इन 10 साल के दरमियान। वही रिपोर्ट कहती है, लेकिन हिंदू इन 10 साल के दरमियान 5.06 5.06% kept more than one wife, અને 0.75% more 0.75% हिंदू मर्दों ने एक से ज्यादा बीवी रखी बनिस्बत मुसलमानों के। इंडियन लॉ मुसलमानों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत देता है, हिंदू को नहीं देता। फिर भी हिंदू मुसलमान से ज्यादा एक से ज्यादा बीवी रखते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर हिंदू गवर्नमेंट हिंदुओं को इजाजत देती थी एक से ज्यादा बीवी रखने की, तो कितने करते थे मुझे पता नहीं। इजाजत नहीं देने के बाद मुसलमान को हरा दिए। इजाजत देंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, जिसमें लिखा है कि सिर्फ एक बीवी रखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद औरतों के साथ, आप अपनी मनपसंद औरतों चाहे 2, 3 या 4 हो, उनके साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन
اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ الفاظ صرف ایک سے شادی کرو صرف قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے, چاہے 2 ہو 3 ہو یا 4 ہو, لیکن ان کے درمیان اگر عدل نہ کر سکو, اگر عدل نہ کر سکے تو صرف ایک. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129 میں کہ عورتوں کے بیچ میں, بیویوں کے بیچ میں عدل کرنا مشکل ہے, لیکن ان سے ایکا ایک ان کو چھوڑ مت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا مشکل ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو 4 بیوی رکھنا فرض ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایک سے زیادہ بیوی رکھنا اسلام میں فرض نہیں ہے, مباح ہے, آپشنل, اجازت ہے. کرنا چاہو, رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہیں, فرض نہیں ہے. اب ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے. آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو لڑکی اور عورت کا پرسنٹیج پیدا ہونے کا یکساں ہے, لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے, آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, آپ کوئی بھی پیڈیاٹرین سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکی ڈیزیز اور جرمز سے اور اچھے سے مقابلہ کر سکتی ہے بنسبت لڑکے سے. دا فیمیل سیکس از دا اسٹرانگر سیکس. جو عورت ذات ہے بیماریاں لڑنے کے مقابلے میں مرد سے زیادہ طاقتور ہے. اسی لیے بچوں کے ایج میں آپ پائیں گے کہ لڑکے زیادہ مرتے ہیں بنسبت لڑکیوں سے. سو پیڈیاٹک ایج میں ہی, بچپن میں ہی عام طور پہ لڑکے کی تعداد لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے. زندگی ہم گزارتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں, شراب کی وجہ سے, ڈرگ کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے. ان میں موت زیادہ مردوں کی ہوتی ہے بنسبت عورتوں کی. اس کی وجہ سے آج عورتوں کی تعداد دنیا میں مردوں سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں, صرف یو ایس اے ملک میں 42 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں, ایک ملک میں, یو ایس اے میں 42 لاکھ 4.2 ملین عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو کے میں, صرف انگلستان میں, انگلینڈ میں 12 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. 1.2 ملین فیمیلز آر مور دین میلز. صرف جرمنی میں 16 لاکھ 1.6 ملین فیمیلز آر مور دین میل. 16 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. صرف رشیا میں 10.7 ملین, 1 کروڑ 7 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ کتنے عورتیں مردوں سے زیادہ ہے سارے دنیا میں. چند شہر ہے خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک انڈیا, ہندوستان, جس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اور اس کی وجہ ہے بیکاز آف فیمیل فیٹیسائڈ اینڈ فیمیل انفینٹیسائڈ. اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے, کیونکہ ہندوستان میں اکثر عورتوں جو بچے ہیں جب پتہ لگتا ہے کہ لڑکی ہے اسے گرایا جاتا ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے. ایک رپورٹ تھی بی بی سی پہ جس کا نام تھا لیٹ ہر ڈائی, پروگرام کا نام تھا اسائنمنٹ. ایک برٹش رپورٹر, اس کا نام تھا ایملی بیکرن, وہ کہتی ہے کہ ہر روز ہندوستان میں کم سے کم, کم از کم 3000 بچے جب پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے وہ گرائے جاتے ہیں, وہ مارے جاتے ہیں پیٹ کے اندر ہی, ابورٹڈ, فیٹیسائڈ. اس کو ملٹیپلائی کریں گے 365 کے ساتھ
تو ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ more than 1 million fetuses بچے جب پتہ لگتا ہے ماں کے کوکھ کے اندر لڑکیاں ہیں اس بچیوں کا قتل کیا جاتا ہے, پیٹ میں ہی قتل کیا جاتا ہے. تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے مطابق جتنی لڑکیاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں ہر 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اسی لیے آج ہندوستان میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے. ہر 1000 مرد کے پیچھے 930 عورتیں ہیں. ہر 1000 مرد کے پیچھے 930 عورتیں ہیں. یعنی ہر 100 مرد کے پیچھے تقریباً 93 عورتیں. 7% عورتیں کم ہیں. اسی لیے فیمس پہلے کہتے تھے ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. ابھی ذرا گورنمنٹ ابھی کچھ چند ہفتے پہلے میں نے ایک اشتہار پڑھا, 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد صرف لڑکی ہو. ابھی ذرا چینج کریں گے, 1 کے بعد 2 بچے ہو, تیسرا چاہتے تو لڑکے ہونا چاہیے, مطلب ورنہ مت کرو. ابھی چینج ہو رہا ہے, ڈیموگرافک چینج ہو رہا ہے. صرف ہندوستان میں 40 ملین 4 کروڑ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف اسی وجہ سے کیونکہ کئی لڑکیاں ماں کے پیٹ میں جنم لینے کے پہلے ان کا قتل کیا جاتا ہے, دنیا میں آنے کے پہلے ان کا قتل کیا جاتا ہے. اور کئی بار جب عورت پیدا ہوتی ہے, تمل ناڈو میں 40% لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کا قتل کیا جاتا ہے. آپ بڑے بل بورڈ دیکھیں گے راجستھان میں اور ہندوستان کے کئی شہر میں کہ 500 روپیہ خرچہ کرو 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ الٹراسونوگرافی کرو 500 روپیہ خرچہ کرو, معلوم پڑو کیا آپ کے پیٹ میں بچہ لڑکی ہے, اس کو گرا دو 5 لاکھ روپیہ بچاؤ. 2-3 لاکھ اس کی پرورش میں اور باقی کی 2-3 لاکھ اس کے دہیج میں. اگر یہ شیطانی حرکت, یہ قتل اگر بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30-40 سال میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوں گی. پہلے اسٹیٹسٹکس اب دیکھیے پوری دنیا کی کہتی تھی کہ تقریباً 1% عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. ہر 1000 میں 10 عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. ابھی اسٹیٹسٹکس دیتے, یہ چند سال پہلے تھی, ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ ہر 1000 میں 10 مرد زیادہ ہے, کچھ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ عورت مرد برابر ہے, کچھ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ مرد عورت سے زیادہ ہے. ہر 1000 میں ہر 1000 عورت کے پیچھے 10 مرد زیادہ ہے. یہ کون سی اسٹیٹسٹک صحیح ہے وہ چھوڑیے, آج تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہر 100 لڑکیوں کے پیچھے 107 لڑکے پیدا ہوتے ہیں. مطلب 7% بچے جب پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے وہ گرائی جاتی ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ لڑکی بیماری کو زیادہ مقابلہ کر سکتی. 15 سال کی عمر تک کے بھی یہ سیم ریشو ہے, ایوری 100 فیمیل 107 میل. ہر 100 لڑکیوں کے پیچھے 107 لڑکے. مطلب جو لڑکیاں زندہ رہتی ہیں اسے بھی قتل کیا جاتا ہے. سائنس کہتی ہے لڑکی اور طاقتور ذات ہے میڈیکلی, پھر بھی انسان لڑکیوں کا قتل کر رہے. صرف چائنا میں 5.1 کروڑ 51 ملین 5 کروڑ 10 لاکھ آدمیاں 5 کروڑ 10 لاکھ آدمی عورتوں سے زیادہ ہے. صرف چائنا میں قتل بند ہو جائے گا تو دنیا کا ریشو الٹا ہو جائے گا. چائنا اور انڈیا ملا کے
9 करोड़ से ज्यादा आदमी औरत से ज्यादा है। अगर ये शैतानी हरकत बंद हो जाएंगी तो आप सोच सकते कितने औरतें मर्दों से ज्यादा रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में जी रही है, यूएसए की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। अगर हर औरत ने अपने लिए मर्द चुन चुका है, फिर भी 42 लाख औरतें को मर्द नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बहन या मेरी बहन इन 42 लाख औरतों में से एक है जिसे शौहर नहीं मिला, तो ऐसे औरतों के पास 2 चारा होता है। एक ऑप्शन, एक चारा है कि वो ऐसे आदमी से शादी कर ले जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके पास बीवी है, या वो बाजारी औरत बन जाए, शी बिकम द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप कहेंगे बाजारी औरत, पब्लिक प्रॉपर्टी, इतना कठिन लफ्ज, इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वर्ड आई कैन यूज। वो पब्लिक की जीनत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी। और कोई भी अच्छी लड़की ये कहेंगी कि वो पसंद करेंगी कि वो उस आदमी की बीवी बने जो पहले से शादीशुदा है, बनिस्बत बाजार की जीनत बने। इसीलिए इस्लाम में एक से ज्यादा शादी करने के लिए कुछ मर्दों को इजाजत है ताकि वो औरतों की हिफाजत कर सके। और मैं जानता हूं कि कोई भी औरत दुनिया में खुश नहीं होंगी अपने शोहर को बांटने से। अपने शोहर को बांटने के लिए कोई भी औरत आमतौर पे खुश नहीं होंगी, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस्लाम में अगर वो औरत सही मुस्लिमा है और दुनिया की हालत जानती है और इस्लाम के अहकामात को जानती है, वो क्या कहती है कि इस्लाम का हुक्म है, इस्लाम का रूल है, शरिया का रूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटे नुकसान को बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। जो छोटा नुकसान ये है कि वो मुस्लिमा अपने शोहर को बांट रही है, बड़ा नुकसान है कि वो अपने बहन को बचा रही है बाजार की जीनत बनने से। तो एक अच्छी मुस्लिमा अपने शोहर को बांटने का गम बर्दाश्त करती है बनिस्बत अपने बहन को बाजार की जीनत बनने से रोकने के लिए। छठा आम सवाल जो गैर मुस्लिम करते हैं इस्लाम के मुतालिक, वो है कि अगर इस्लाम में मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है, तो इस्लाम में औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत क्यों नहीं है? आमतौर पे अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होता है तो बहुत आसान है जानने के लिए कि उस बच्चे की मां कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की वालिदा कौन है, उस बच्चे का वालिद कौन है, बहुत आसान है। लेकिन अगर एक औरत की एक से ज्यादा शोहर है और अगर बच्चा पैदा होता है
मां का तो पता लग जाएगा, वालदा का तो पता लग जाएगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। तो जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, तो शायद आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। और आज की साइंस कहती है कि वो बच्चे जो अपने वालिद का नाम नहीं जानते, अक्सर उनके जहन पे गलत असर पड़ता है बचपन में। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उनका बचपन बहुत बुरा गुजरता है। मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं जानता हूं कि आज की मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है और कई टेस्ट है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सकता है वालिद कौन है। लेकिन ये टेस्ट 100% सही नहीं है। मान भी लो अगर सही बन जाएंगे कल, फिर भी ये आज हमें पता लगा, इतने साल तक के तो हमें पता नहीं था। और इस्लाम सैकड़ों सालों से है। और ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है क्यों औरतों को एक से ज्यादा शोहर रखने की इजाजत नहीं है। आज की साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमिस्ट इन नेचर एज कंपेयर टू द वुमेन। मर्द का जो नेचर है, जो उसका नेचर है, वो एक से ज्यादा बीवी रखने का नेचर है बनिस्बत औरतों के, जो एक से ज्यादा शोहर रखना चाहते हैं। आज हमें यह पता लगता है कि औरतें दे अंडरगो मेंस्ट्रुअल चेंजेस। हैज के वजह से उनका जो नेचर है, उनके जो लेवल्स है, वो चेंज होने की वजह से उनकी जहनी हालत हैज के दौरान बदलती रहती है। तो उस हालत में उस औरत को एक से ज्यादा बीवी की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। जो आदमी के लिए आसान है क्योंकि चेंजेस उसमें नहीं है, वो एक से ज्यादा शोहर की ड्यूटी कर सकता है। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक औरत के एक से ज्यादा साथी है, जो सेक्सुअल पार्टनर है, अगर एक औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर के साथी है, हम बिस्तरी करने के लिए, और अगर वो सब लोग आपस में दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर फेथफुल, आपस में भरोसे वाले हैं, आज की साइंस कहती है देयर आर चांसेस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, जिनसी बीमारियां पैदा होंगी अगर एक औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर के साथी है, और ये बीमारी फिर से मर्दों में फैलेंगी। लेकिन अगर मर्दों के एक से ज्यादा हम बिस्तर के साथी है और आपस में सब वफादार है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होने के चांसेस नहीं है, वेनरल डिजीज के चांसेस नहीं। तो अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने मर्द को बनाया है पॉलीगेमिस्ट बाय नेचर और औरत को नहीं। सातवीं गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के खिलाफ, या सातवीं गलतफहमी जो सबसे आम है इस्लाम के मुतालिक, वो है कि इस्लाम में औरतों को जलील किया जाता है, इसीलिए उन्हें हिजाब में रखा जाता है। औरतों को हिजाब में रखने के बाद इस्लाम उसे जलील करती है, इस्लाम उन्हें जलील करता है। यह सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे कुछ तारीखी बात कहना चाहता हूं कि तारीख आज ये कहती है कि बेबीलोन में, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में, अगर एक मर्द औरत का कत्ल करता था तो उस मर्द को सजा मिलने के बनिस्बत उस मर्द के औरत का कत्ल किया जाता था। ये उस टाइम का कानून था। आप जब ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि एक औरत थी जिसका नाम था पेंडोरा, जो मनुष्य थी, जिसके वजह से जितनी बुराइयां
माहौल में थी, ग्रीक सिविलाइजेशन में थी, उस औरत की वजह से थी। और ग्रीक सिविलाइजेशन में औरत को पहले इज्जत दी जाती थी, लेकिन फिर उसे सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रोमन सिविलाइजेशन में वुमेन वर यूज ओनली फॉर सेक्स एंड प्लेजर, प्रोस्टिट्यूशन वॉज कॉमन। औरतों को सिर्फ हम बिस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता था और प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में औरत को कहा जाता था कि वो शैतान की निशानी है। और कुरान नाजिल होने के पहले अरब देशों में औरत जब पैदा होती थी, लड़की जब पैदा होती थी, उसे जिंदा दफनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद यह गलत प्रैक्टिस बंद हो गई, औरतों को दफनाना बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी दुनिया के कई शहरों में आज भी यह हो रहा है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में भी हो रहा है। इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने औरतों को इज्जत दी और बराबर के हुकूक दिए, लेकिन हुकूक देने के बाद ये हुकूक को कायम रखने के लिए उसका तरीका भी सिखाया। जब औरतों को अपने हक दिए, तरीका सिखलाया किस तरीके से हक बरकरार रह सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फर्ज कहा, लेकिन अक्सर मुकर्रीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 40 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्यालात आ जाए, फौरन अपनी नजर को नीचे करे, ताकि वो अपने शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी कोई इस्लाम में मर्द औरत को देखता है, गलत ख्यालात आ जाते, फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर हराम है, पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है। उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मेरी नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो, ताकि आप उसकी ब्यूटी पे फीस्ट कर सको, ताकि आप उसकी जीनत को लेके ऐशो आराम कर सको। उसके फौरन बाद दूसरी आयत आती है औरतों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि कह दो मोमिना से, मोमिन औरतों से, कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लो छाती पे ढाक ले और अपनी जीनत मत दिखाओ, सिर्फ जो अपने आप जाहिर होता है, सिर्फ, और अपनी जीनत को छुपाओ सिर्फ अपने शोहर, अपने बेटों, अपने वालिद, और एक बड़ी फहरिस्त है जो महरम की फहरिस्त है कि महरम के अलावा बाकी लोगों के सामने, बाकी मर्दों के सामने आपको हिजाब करना फर्ज है। इस्लाम में हिजाब के मुतालिक 6 पॉइंट्स है, 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंट, कितना ढका होना चाहिए अपना जिस्म। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरतों के लिए
सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ उनका चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। कुछ उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते जो है वो मर्द और औरतों में यकसा है। कपड़े इतने चुस्त नहीं पहनना चाहिए ताकि जिस्म का नक्शा दिख जाए। कपड़े इतने महीन, इतने पतले, इतने झलकने वाले, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट नहीं होना चाहिए ताकि आप कपड़े के थ्रू जिस्म को देख सके। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए। 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और 6वां नुक्ता है कि कपड़े ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो गैर मुसलमानों की निशानियों में से हो। मिसाल के तौर पे टीका या सलीब, ऐसे निशानियां नहीं पहनना चाहिए। ये 6 नुक्ते हैं कपड़ों के बारे में। लेकिन मुकम्मल हिजाब सिर्फ कपड़ों में नहीं है। कपड़ों के अलावा किस तरीके से औरत और मर्द पेश आते हैं, किस तरीके से बात करते, किस तरीके से चलते हैं, कपड़े के हिजाब के अलावा हिजाब ज़हन का, हिजाब दिल का, हिजाब सोच का, किस तरीके से औरत चलती है या मर्द चलता है, बात करती है या बात करता है, सोचता है या सोचती है, इन सारी बातों को लेके हिजाब मुकम्मल होता है, सिर्फ कपड़े नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि ए पैगंबर, ए रसूल, कह दो अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए अपने जिस्म पे जिल्बाब ओढ़ ले ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी न करे, सो दैट दे शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड नो वन शैल मोलेस्ट देम। कुरान मजीद में लिखा है कि हिजाब कहा गया औरतों के लिए ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उनके साथ कोई छिड़कानी न करे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें, जुड़वा यकसा, आइडेंटिकल ट्विन्स, और दोनों बहनें खूबसूरत है और यकसा खूबसूरत है, एक बहन और ये दोनों बहनें अगर चल रहे हैं पेडर रोड के ऊपर बंबई की सड़कों पे, और एक बहन पहन रही है इस्लामिक हिजाब, सारा बदन दिखा हुआ, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख रही है, और दूसरी बहन पहनी है मगरबी लिबास जिससे बदन दिखता ज्यादा है और ढका हुआ कम है, मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स या डीप नेक के साथ कपड़े पहन के चल रही है, और ये दोनों बहनें चल रही है पेडर रोड पे, और अगर राउंड द कॉर्नर देयर इज अ हुलिगन इज वेटिंग फॉर अ कैच, और अगर एक लफंगा रुका हुआ है कोने पे कोई लड़की को छेड़ने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सी लड़की को छेड़ेगा, कौन सी बहन को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहन रही है कि वो बहन जो मगरबी लिबास पहन रही है? किसे छेड़ेगा? किसे छेड़ेगा? मगरबी लिबास पहनने वाली बहन को। यह जवाब बहुत आसान है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे लिबास दो दूसरे को दावत देते हैं कि मुझे छेड़ो, तो लोग छिड़कानी करेंगे। इसीलिए कुरान में लिखा है कि हिजाब औरतों को छिड़कानी से बचाता है। और इस्लाम में इसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, तो इस्लाम में सजाए मौत। गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत। इस दौरान इस्लाम एक बहरहम मजहब है, जाहिल मजहब है, सजाए मौत इस दौर में। लेकिन जब मैं गैर मुसलमानों से पूछता हूं कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपके मां का कौन बलात्कार करता है, जिना बिल जब्र करता है आपके मां के साथ, और अगर वो रेपिस्ट को, वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे दूंगा सजाए मौत।
کچھ لوگ نے کہا کہ میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا. اگر کوئی آپ کے ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے تو آپ اسے مارنا چاہیں گے, اس کا قتل کرنا چاہیں گے. دوسرے کے ماں کے ساتھ کوئی بلاత్కాر کرتا ہے آپ کہتے ہیں او سزائے موت, جاہل مذہب. یہ کیوں ڈوگلے پنا؟ وائی ڈز ڈبل اسٹینڈرڈز؟ اور امریکہ جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ دیش ہے, ملک ہے, ہم اکثر سمجھتے کہ موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ. آپ جانتے ہیں کہ سن 1990 کی رپورٹ کے حساب سے ایف بی آئی کے ہر روز یو ایس اے میں 1752 کیسز آف ریپ ہوئے تھے. سن 1990 میں ہر روز یو ایس اے میں 1752 ریپ ہوئے. جب ہم 1996 کی اسٹیٹسٹکس پڑھتے ہیں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس آف کرائم اینڈ وکٹمائزیشن, 1996 کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز امریکہ میں 2713 ریپ ہوتے تھے. 1990 میں 1752, 6 سال بعد 2713. ہو سکتا ہے کہ امریکن لوگوں میں, مردوں میں 6 سال میں مردانگی اور آ گئی. یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا تھا 1996 میں. 2006 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کرائم جسٹس کی, ہر روز امریکہ میں 4000 ریپ ہوتے تھے. 4000 یعنی ہر 21 سے 22 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا تھا امریکہ میں 2006 میں. ہر 22 سیکنڈ میں ایک ریپ. ہم یہاں موجود ہیں تقریباً 2 گھنٹے سے ہم یہاں موجود ہیں کم از کم. ان 2 گھنٹوں میں 120 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں امریکہ میں. جب سے میں تقریر کر رہا ہوں امریکہ میں 120 ریپ ہو چکے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم امریکہ میں اسلامک شریعت نافذ کریں گے کہ کوئی بھی مرد عورت کو گھرتا ہے اسے نیچے دیکھنا چاہیے, عورتوں کو اسلامک حجاب پہننا چاہیے, سارا بدن ڈھکا ہوا, صرف چہرہ. اس کے بعد مرد بلاత్కాر کرتا ہے, زنا بالجرم کرتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ پینالٹی, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاత్కాر کی تعداد, زنا بالجرم کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی وہی کہ وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعہ لاگو کرو, فوراً رزلٹ. میرے اس جواب سے مغربی ملک کی حکومت خوش نہیں ہے. میں ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کوٹ کرتا ہوں تو ایف بی آئی کے نیک سے خوش نہیں ہے. ان کی اسٹیٹسٹکس کوٹ کر رہا ہوں میں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ 1.5 سال پہلے جون میں 2010 میں 16 تاریخ کو مجھے انگلینڈ میں داخل ہونے سے بین کیا گیا. کیوں؟ ایک وجہ تھی جو میڈیا رپورٹ کر رہی تھی, مسوجینی لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ عورتوں کے خلاف ہے, عورتوں سے نفرت کرتا ہے, ون ہو ہیٹس وومن. اس لیے ماشاء اللہ تقریباً 40% تو یہاں عورتیں ہیں. مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہے کہ بمبئی شہر میں 40% سے زیادہ جو آڈینس میں عورتیں ہیں. وہ میڈیا کہتی ہے کہ ذاکر کہتا ہے اپنے جواب میں کہ ویسٹرن کپڑے پہننے سے آئی ایم انوائٹنگ ریپ. کیونکہ ذاکر کہتا ہے کہ عورتیں ویسٹرن کپڑے پہنتی ہے اسی لیے ریپ کو دعوت دیتی ہے, اسی لیے وہ کہتی ہے, یہ میڈیا کہتی ہے عورتوں کے خلاف ہے. یہ میڈیا میں کہتا ہوں نا, ہیرو کو ولن بنا سکتے, ولن کو ہیرو, دن کو رات, رات کو دن, کالا کو سفید, سفید کو کالا. وہی پیپر سنڈے ٹائمز جو میرے خلاف آرٹیکل شائع کیا تھا,
जून 2010 में 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में एक आर्टिकल आया था जिसमें एक सर्वे किया गया था, वही पेपर में आर्टिकल, कि अंग्रेज लोग हर 7 में से एक अंग्रेज कहता है कि औरतें अगर बराबर कपड़े नहीं पहनती, अपने जिस्म को ज्यादा दिखाने वाले कपड़े पहनती है, उसको मानना चाहिए। जाकिर नहीं कह रहा, 1 आउट ऑफ 7, हर 7 में से एक ब्रिटिशर, इंग्लैंड का नागरिक कहता है कि औरतें अगर सही कपड़े नहीं, ज्यादा जिस्म की नुमाइश करती है, उसे मारना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि औरतों को मारना चाहिए। तो वो लोग अच्छे लोग, जाकिर गलत। वही पेपर 5 साल पहले 21 नवंबर 2005 में एक सर्वे शाया किया था कि एक तिहा हिस्सा जो ब्रिटिशर्स कहता है, दूसरा सर्वे में 26%, 26% ब्रिटिशर्स कहते हैं कि रेप का अहम कॉज, रेप होने का अहम वजह है औरतें और लड़कियां कम बदन ढकाने वाले कपड़े पहनते हैं। कौन कहता है? ब्रिटिशर्स। हर 4 में से एक ब्रिटिशर कहता है कि औरतों के कपड़े अहम वजह है उसका बलात्कार होने की वजह से। उनके साथ ब्रिटिश प्रेस खुश है, जाकिर के साथ नाराज है। क्यों? क्योंकि जाकिर मुस्लिम है, जाकिर फंडामेंटलिस्ट है, जाकिर एक्सट्रीमिस्ट है। मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, एंड इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इट्स एक्सट्रीमली काइंड, एक्सट्रीमली मर्सीफुल, इट्स इंटॉलरेंट है जो गलत काम करते। इट्स इंटॉलरेंट टुवर्ड्स रेप, it's intolerant towards prostitution, it's intolerant towards drug addiction, it's intolerant towards alcoholism. वही पेपर शाया कर रहा है कि 4 में से हर ब्रिटिशर समझता है कि रेप की मेन वजह है औरतें कम कपड़े पहनना। और एक सर्वे है कि जो औरतें रेप होती है उनके साथ सर्वे किया गया है। आपको क्यों लगता है आपके साथ रेप किया? 56% औरतें कहती है जो रेप हो चुकी है, उनके साथ बलात्कार हो चुका है, कि मेन सबसे अहम वजह कि हम ऐसे कपड़े पहने थे जिससे बदन कम ढका था। जो रेप होने वाली औरतें कहती है कि वो वजह है, जाकिर कहता है तो गलत है। इसे कहते हैं दोगलेपना, डबल स्टैंडर्ड्स। इस्लाम में हिजाब औरतें के लिए फर्ज है ताकि उनकी इज्जत की जाए। सातवां अहम सवाल या आम सवाल इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम में गोश्त खाने की इजाजत क्यों है?